Namaskaram, Sajan Abrol. It is my pleasure to have you with me, and it's just a great feeling that you are there with me, and I'm interviewing you. For me, it's a very big thing, and today I would love to tell the audience about you, who Sajan Abrol is. So today this is my second interview, and Sajan Abrol is with me. He is the founder of Clothebox Foundation. Clothebox Foundation एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये लोग जितने भी गरीब लोग होते हैं या अनप्रिविलेज्ड लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते, तो क्लोथ बॉक्स फाउंडेशन उनको कपड़े प्रोवाइड करती है। जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो प्लेटफॉर्म्स पे या फिर फुटपाथ्स पे सोते हैं, तो क्लोथ बॉक्स फाउंडेशन उनको clothes देती है ताकि they can have a nice, at least they can sleep well. So now Clothebox Foundation has touched 124 villages in India, and they have touched 3.5 lakh lives, and which is a great thing in itself. And this is a real incredible, Sajan. I mean, this really touched me. Touching 3.4 lakh people's lives is like, wow. एंड मैंने ये देखा है जब हम नेक काम करते हैं तो हम खुद ब खुद सक्सेस हमारे पीछे आती है, वी डोंट रन आफ्टर सक्सेस। एंड साजन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इट इज लाइक एक दिन ऐसा आया कि बीबीसी चैनल ने उनको कवर किया, एंड दे जस्ट बिकेम अ ब्रांड, और उनको किसी और ने इंटरव्यू नहीं किया, नन अदर देन दी मिस्टर अमिताभ बच्चन। उन्होंने उनको इंटरव्यू किया, एंड दैट्स इटसेल्फ अ ग्रेट थिंग, यू बीइंग इंटरव्यूड बाय हिम। एंड दिस डजंट एंड हियर। अमिताभ बच्चन खुद इनके साथ आए और इन्होंने अपनी एक ड्राइव रन की जो कि कंस्ट्रक्शन एरिया पे थी, और उन्होंने अपने खूब सारे कपड़े वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को डोनेट किए। दिस इज हाउ द जर्नी बिगिन फॉर हिम, एंड it just continued, and आपने बहुत ही छोटी उम्र में बहुत बड़ा टाइटल हासिल किया, that is Forbes 30 under 30 Asia, and which is again an incredible achievement, I'm sure, for you. And at such a young age इतना बड़ा काम करना itself is a big thing, and today I got a chance to interview you. For me, this is a great thing. And again, they won a award from the Ministry of India, which is National Youth Award, and again another achievement to their kitty. So today we are having Sajan Abrol with us, who's again a legendary person in many ways, because he's helping out a lot of people out, there, and connecting the entire India together. So which itself is a great thing. You are one of the real heroes, which definitely India needs and we all need. And today we have you with us. Thank you so much for coming. Thank you so much for accepting the invite. Thank you so much for your kind words. You've given a very humble introduction. I really feel, I actually feel very nice. कभी कभी एक पूरे दिन की थकान के बाद रात को हम 9:30-10 बजे इंटरव्यू कर रहे हैं, पूरे दिन की थकान के बाद ऐसे वर्ड ही काम आते हैं। Yeah, this is just keep you going and just doing the great thing is itself बहुत बड़ी बात है। पता है मतलब मैं जब थी ना साजन, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि we should be focused on process, सक्सेस तो खुद ही आ जाती है। बिकॉज आपने कभी ये सोच के क्लोथ बॉक्स फाउंडेशन शुरू नहीं किया था कि आप अमिताभ बच्चन आपका इंटरव्यू करेंगे या आप फोर्ब्स 30 under 30 में जाओगे, but it's just a process which made you big, and beauty of life is in the process rather than in the destination itself. So I think this is a great message which you are giving. Right. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस में से, and this came out of a discussion with my sister. तो मैंने एक और वेंचर स्टार्ट किया था which was not picking up. तो काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद me and my sister we were having a discussion, और एकदम से ये थॉट आया। मैंने उसको बोला तुझे पता है कि क्लोथ बॉक्स ने पिक क्यों किया और मेरे दूसरे वेंचर ने पिक क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब ये था कि क्लोथ बॉक्स में ना हम बिना कुछ एक्सपेक्ट किए बस काम करे जा रहे थे और हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन जब मैंने अपना वेंचर लिया तो मेरे बहुत सारे पीछे रीजंस थे, अच्छे रीजंस भी थे, लेकिन जो मेरा माइंडसेट था वो करते वो बिल्कुल डिफरेंट था। आपके गोल्स हमेशा होते हैं आपके साथ, लेकिन दोनों के अगर मैं 4 घंटे उसको दे रहा था और 4 घंटे इसको दे रहा था, तो दोनों का जो माइंडसेट था मेरा उस विंडो में ना मेरे थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट थे। तो आज भी जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा सोच के नहीं जाते कि आज अमिताभ बच्चन ने बुलाया है तो कल कोई और बुलाएगा। लीस्ट एक्सपेक्टेड था जिंदगी में दैट ही वुड कॉल अस,
लीस्ट एक्सपेक्टेड था कि आफ्टर हिम कॉलिंग अस ही विल कम टू गुड़गांव एंड ही विल डिस्ट्रीब्यूट क्लोथ्स विद अस. Very true, yeah. You and I have a lot of common people in as mutual friends, and they were there to experience it, and it was a lovely experience. Or in fact, हमें भी नहीं पता था that he is going to come, so it was his surprise to us. Yeah. And that too as a volunteer, he was coming, right? Yeah. It's a Exactly. big thing. Until the last moment, we did not know. Yeah, he was coming. Yeah. Definitely, that's an incredible experience for you. आप साजन हमें कुछ अपने क्लोथ बॉक्स फाउंडेशन के बारे में बताएं. आपने कैसे शुरू किया, मतलब ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने कैसे सोचा कि आप ये करने वाले हो लाइफ में, एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू डू. हम 3 फ्रेंड्स थे. कॉलेज के बाद हम लोग कोचिंग में जाते थे. हम लोग कोई सीईटी एग्जाम होता था किसी यूनिवर्सिटी का, तो उसमें हम तीनों कोचिंग में जाते थे. तो हम लोग स्कूल फ्रेंड्स ही थे एंड वी बिकेम रियली क्लोज, स्पेशली आफ्टर. तो बातें होती थी कि यार ये बंदा यहाँ जा रहा है. बात हम लोग गुड़गांव में एक कैफे में बैठे हुए थे और बड़ा परेशान थे कि व्हाट इज दैट वी रियली वांट टू डू विद आवर लाइफ. एंड आई वाज ड्राइविंग बैक होम और एग्जैक्टली जैसे वो मोमेंट जैसे जेके रोलिंग के साथ हुआ कि उसने टिश्यू पेपर पकड़ा और उसने जो उसके दिमाग में थॉट्स थे वो उसने डाल दिए. मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसे हुआ. आई वेंट बैक होम, मेरे दिमाग में ड्राइव करते कुछ आया एंड मैं नमन से मिलके ही आ रहा था. मैं भाग के किचन में गया, मैंने एक पेपर पेन पकड़ा, मैंने सब कुछ लिखा. मैंने मेरे सिस्टर को बोला, मैंने कहा ये आइडिया है, डू यू थिंक इट विल वर्क. उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, कहती हाँ ये चल सकता है, हो सकता है. तो उस टाइम लाइफ में ऐसा था कि आप कुछ भी करो तो आपके पेरेंट्स आपको कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे. कि आपकी फैमिली को लगता था दोस्त दिन का शौक है. And you were too young also that time. I was very young and मेरे पेरेंट्स दोपहर को घर से बाहर गए. मैंने अपने बेड का बॉक्स खोला, मैंने कहा ये मेरे पुराने कपड़े हैं. मेरी सिस्टर अपने फोन पे थी और जाते हुए बोले क्या मजाक कर रहा है. एंड मैं बाहर गया, आई टुक पिक्चर्स, आई केम बैक and I called up a couple of friends and I said this is what I plan to do, and me and Naman, and we want to take this ahead like this. This is our plan. And they said yes, and that's how it started. And then we started from our own wardrobes. We started putting pictures on social media. We had a good network. We had a good network of friends. And at that point we were not working. हमारे पास jobs नहीं थी. 15 दिन के बाद डेस्टिनी बोलूंगा, गुड कर्मा बोलूंगा, क्या बोलूंगा, आई वेंट इनटू अ कंपनी जिन्होंने पहले मुझे रिजेक्ट कर दिया था. आई रियली वांटेड टू गेट इन एंड आई गॉट दैट ऑफर. आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम एंड देन बोथ द थिंग्स केप्ट हैपनिंग साइमल्टेनियसली. मैं सुबह 7:30 बजे नौकरी पे जाता था. 4 बजे मेरी छुट्टी होती थी. छुट्टी के बाद 4 बजे से लेके रात को 11 साढ़े 11 तक 2-3 साल तक मेरा ये रूटीन था कि 4 बजे से 11:30 तक मैं क्लोथ बॉक्स का काम करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा. 4 बजे से 11:30 शुरू के दिनों में काम नहीं था. आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते सारा टाइम, बट कुछ छोटी मोटी इंट्रिकेट डिटेल्स, कॉलिंग अप पीपल, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है. फेसबुक में हम लोग अपनी रीच, उस टाइम फेसबुक बहुत ऑर्गेनिक था, फेसबुक पे अपनी रीच कैसे बढ़ा सकते हैं. इंस्टाग्राम नहीं था उस टाइम इतना ज़्यादा पॉपुलर. तो ये सारी चीज़ों पे फोकस था और साइमल्टेनियसली ऑफिस का भी काम था, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते थे. तो धीरे धीरे हम वो 4 बजे, हाँ एग्जैक्टली यस. एंड 4 बजे से जो 11:30 बजे हम काम करते थे उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमारे पास. हमें लगता था हमने एक चीज स्टार्ट करी है, अब इसको करना है. जैसे आजकल कहते हैं ना अपना स्टार्टअप करना है, उस टाइम ये थॉट नहीं था यार अपना स्टार्टअप करना है. उस टाइम ये था कि हाँ ये ब्रांड हमारा है और हम इस ब्रांड के अंडर काम करेंगे. This is our thing and we have to establish it, right? That was the thought. Exactly. और उस टाइम ये थॉट तो बिल्कुल ही नहीं था. और आज भी हम लोगों के घर में डिस्कशन होती है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन होती है कि कभी हमने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हो जाएगा.
True. हमें लगता था हम Very इतनी uh, छोटी मोटी एक्टिविटी, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था उस टाइम फोर्ब्स भी क्या होता no, I can imagine. Yeah. है। राइट, Mm, yes. so that's how we got introduced to this world, and we met a lot of people, we started learning new things. बहुत इस पूरे पूरे एक्सपीरियंस में बहुत सारी लर्निंग थी, और नए नए लोगों से मिलना, बहुत बहुत सीनियर लोगों से मिलना, क्योंकि हम जॉब करते थे और हमने नई नई जॉब शुरू करी थी। तो उस टाइम पे जब हमें कोई किसी कंपनी में इंट्रोड्यूस करता था, तो आपको इन चीज़ों के लिए टॉप मैनेजमेंट पे जाना होता है। तो हम जूनियर लेवल एम्प्लॉयज, और हमें कोई दूसरी थर्ड थर्ड कंपनी में मतलब कोई एक बाहर की कंपनी में भेज रहा है, और वो कहता है कि ये HR हेड है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है, आपकी इससे मीटिंग है। तो हम अंदर जाके ऐसे हो जाते थे, क्योंकि मन Wow, में yeah. तो क्योंकि मन में तो हायरार्की वही थी ना, क्योंकि ऑफिस तो हाँ, सुबह जाना है। सुबह हाँ, true. ऑफिस से जब I'm feeling with you. हाँ, सुबह ऑफिस का वो जो लीडर निकलेगा सामने से, या मैनेजर निकलेगा, या आप ऐसे सारे के सारे ऐसे देखते हैं कि देखो आज प्रेसिडेंट जा रहा है, देखो आज So CEO true. जा रहा है। तो And सुबह के so टाइम ये होता young था। people, I can imagine. Yes, yeah. हाँ, तो वो धीरे धीरे ना वो थॉट को चेंज करना, हमेशा रूम से Hmm. बाहर निकल के ऐसा लगता था यार कितना मैसअप कर दिया ये पूरा का पूरा जो इनके साथ डिस्कशन, कोई थॉट के साथ नहीं गए, कितने फेलियर्स ऐसे हुए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिली जब बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जाके हम लोगों से बात करते थे, MD से बात करते थे, तो हमें ऐसा लगता था यार ये जो हमने किया ना आज बिल्कुल गलत किया। फिर उन चीजों को इम्प्रूव किया, फिर True. अपने मन से एक थॉट निकाला, जैसे जैसे ब्रांड बनना शुरू हुआ, अपने मन से एक थॉट निकाला कि नहीं, ये एक ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा to reach out to True. more people. And we did not know anything about a non-profit. हमको कोई नॉलेज नहीं थी। We would take up phone numbers from of people, from our parents, from our friends. We would call our friends, fathers or mothers. एक फ्रेंड था, उसके Yeah. फादर सीए थे, उसको बोला यार Hmm. तू अपने पापा से बात करा दे, तो कैसे होता है। फिर एक सीए को फोन किया, 2 राय ली, और पेरेंट्स से बोला यार इससे कनेक्ट करा दो। एक बैंक अकाउंट खोलना था, उस टाइम हमारे यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलने के लिए रेफरेंस चाहिए था, तो वो रेफरेंस के लिए हमने 5 फोन घुमाए। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, आपसे बात करते करते मुझे याद आ गई। नाविन, अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जो बहुत ही इमोशनल हो, जो बहुत ही दिल को छू। आई एम श्योर कि आपने इतने लोगों को कपड़े दिए हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ के ऐसे होते हैं जो बस ऐसे लगता है यही करना चाहते हैं। एंड जब लोग ओवरवेल्म्ड होते होंगे, जैसे आप किसी गरीब को कपड़े दे रहे हो या उसकी कोई भी विश पूरी कर रहे हो, एंड हाउ वाज इट फॉर यू? कुछ एरियाज हैं ऐसे जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, हम्म। और हम भी जाते हैं, हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं। कई बार ऐसे होता है, बहुत ही ओल्ड लोग होते हैं, वो आपके पैर छूने लग जाते हैं, तो उस टाइम पे लगता है यार ये क्या कर रहे हैं, तो हम पीछे हट जाते हैं। मैं रिसेंटली लोंगे वाला गया था, आई थिंक अबाउट 4 महीने पहले। तो वहाँ पे हम लोग आर्मी के साथ काम कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एंड बिल्कुल ही एकदम, मैं कहूँगा कि एकदम बंजर एरिया है, और आप प्योर डेजर्ट में चल रहे हो, एकदम से आपको लगता है एक घर, सामने एक घर दिखता है आपको। तो हम सोचते हैं यार, एज पीपल कमिंग फ्रॉम अर्बन एरियाज, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है लोकलाइट्स को कि ये क्यों और कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन उन लोगों के वहाँ पे टेलीफोन का नेटवर्क नहीं है, कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर, हेल्थ केयर सर्विस नहीं है। वो लोग अपने जो एनिमल्स वगैरह हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं की लाइफ उनके साथ है, और बकरे चराते हैं, भेड़ बकरी चराते हैं, इसी तरह की चीजें हैं इनकी लाइफ में। और आप वहां से निकलो तो उसके बाद मतलब आई डोंट थिंक कि वहां पर दोबारा कोई जाएगा, ऐसी जगह थी वो। हमारे पास ड्रोन शॉट्स थे, हमने ड्रोन से शॉट्स लिए थे हमारी वीडियो टीम ने।
आप एक यूट्यूब पे लॉन्गे टुगेदर विद लॉन्गे वाला टाइप करोगे तो एक डॉक्यूमेंट्री आएगी जो हमने शूट करी थी। उसमें ड्रोन शॉट्स में आप देखोगे कि पूरा येलो है, ऊपर से चॉपर व्यू पूरा येलो और बीच में एक घर, बीच में इतना सा घर, ये लाइफ है। ये तो लाइफ वहाँ है। पे वहाँ पे हम हमारी कुछ हैंडमेड ब्लैंकेट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करी थी। तो वहाँ पे एक आदमी था, वो ऑलमोस्ट रो पड़ा। उसमें इनफैक्ट एक शॉट भी है टुगेदर विद लॉन्गे वाला में। कोविड के टाइम में भी बहुत कुछ वैसा हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। हम लोगों को हेल्पलाइन नंबर पे बहुत कॉल्स और क्वेरीज आई हैं जहाँ पे लोगों ने बोला है हम अच्छी फैमिलीज हैं लेकिन हमारे पास खाने को पैसे नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप बड़े फैमिली में रहते हो ट्रू। या आप बड़े घर में रहते हो तो आपके पास राशन हो या एसेंशियल्स हो। मेरे को गोवा के एक फैमिली का कॉल आया और उन्होंने बोला कि आप हमारे बच्चे के लिए, या जो भी एसेंशियल थी, एसेंशियल ये थी कि मेरे को एक टूथपेस्ट चाहिए सिर्फ, आप मेरे घर एक टूथपेस्ट भिजवा दो, या फिर आप मेरे घर में मेरे छोटे बच्चे के लिए पाउडर्ड मिल्क भिजवा दो। और वो ये नहीं कह रहे कि मेरे को पूरे मंथ का चाहिए, वो कह रहे मुझे एक पैकेट दे दो आप सिर्फ, ये रिक्वायरमेंट है। हम लोगों को पता चल जाता है जेन्युइन केसेस कौन सा, जेन्युइन केसेस नहीं है। बहुत सारे लोगों को घर में राशन था लेकिन उन्होंने फिर भी लिया। इतने एक्सपीरियंस के बाद जब आप लोगों से बात करते हो, और हम लोग थोड़ा और एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, जितने भी हम हद तक जा सकते हैं पता करने के लिए कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी कोर्ट में, मेरे को घर पहुंचा दो किसी तरह से, मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, मुझे देखना है। मतलब ऐसे लोग डिमांड रखते हैं आपसे। हाँ, बिकॉज हम लोग उस नेटवर्क में हैं तो जो भी हम कर सकते हैं वो कोशिश तो रहती है। बहुत कोशिश करते हो यार। नहीं, दिस इज अमेजिंग यार। टचिंग पीपल्स लाइफ और दूसरों को खुद से ऊपर रखना ही साजन, आई थिंक इज द बेस्ट थिंग व्हिच एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन डू फॉर अदर्स, यू नो, कि जस्ट हेल्पिंग देम आउट विद अ लिटिल बिट ऑफ थिंग्स आल्सो। उनको खुशी मिलती है एंड वो करना ही इटसेल्फ में बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड आई कैन आल्सो इमेजिन, अभी हम लोगों ने अभी अपना घर शिफ्टिंग किया तो जो वर्कर्स आए हुए थे, जस्ट एंड में उनको 200 रुपए एक्स्ट्रा देके ही मतलब मेरे पूरे दिन की थकान उतर गई। मुझे ऐसे लगा एटलीस्ट दे आर हैप्पी, यू नो, देयर वाज अ स्माइल ऑन माय फेस। हम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे सुबह के शिफ्टिंग करना, एंड यू नो देयर वाज लॉट ऑफ हैसल दैट टू इन द कोरोना टाइम्स, बट आई कैन इमेजिन दैट हैप्पीनेस यू गेट व्हेन once you just give them, you know, some penny, and they were also happy. There was a smile on the face, and when they were going, you know, I felt so good that time. I was like, you know, this is the only thing which is giving me happiness out of everything in the world, you know, just touching their lives and, you know, making them feel good. And I can imagine that. Right. And आप अपना जो Forbes 30 under 30 का टाइटल है उसके बारे में हमें कुछ बताएं, मतलब how it came your way, and that's definitely a great achievement, and you know, and in such a young age इतना बड़ा टाइटल लेना is also, you know, is a big achievement, I'm sure. हमारे पास एप्लीकेशन कॉल आई थी, हमने अप्लाई किया। आई थिंक तीन चार राउंड्स होते हैं, मोस्टली रिटन एप्लीकेशन होती हैं, एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दे आस्क। They dig deep into your profile and the sort of work that you have done. So all of that research happens. उनके अपने कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो वो देखते हैं कि जैसे आप एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या आप यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आपके काम ने क्या इम्पैक्ट किया है। नॉट नेसेसरी कि आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ही हो, यू कैन बी अ फॉर प्रॉफिट ऑल्सो। सो वी अप्लाइड एंड वी रियली वांटेड टू बी ऑन द लिस्ट, क्योंकि फोर्ब्स इज अ रियली बिग थिंग। छोटी सी बात बताता हूँ, मेरे को नहीं पता था कितनी बड़ी बात है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिखने के बाद लिंक्डइन पे रोज भर भर के रिक्वेस्ट आते हैं। True. Yeah. No, they are great achievements. I'm sure अमिताभ बच्चन की ड्राइव के बाद भी आपको बहुत सारी सपोर्ट मिली होगी, right, from the big firms and everything for the donation. आपका काम बहुत ज्यादा बड़ा होगा उसके बाद।
अमिताभ बच्चन को के पूरे एक्सपीरियंस को ना मैंने कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। मैं डिफाइन करता हूँ आपको। हम्बल, सक्सेस और बड़ा बड़ा कैपिटल्स में फेलियर। वर्ड, हाँ, humble because he's a very humble person. I have not met somebody of his stature who's so grounded and Yeah, so yeah. humble. And success because, like you said, a lot of good traffic came in. A lot of people wanted to donate. हमारे पास जगह नहीं बची थी. We used to work out of a very very small warehouse. And failure because हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर लिया कि एक शो जो रात को 9:30 बजे प्राइम टाइम पे स्टार प्लस पे आता है उसका ये रिस्पॉन्स होगा। और हमारे पूरे एपिसोड में उन्होंने 3 सेलिब्रिटीज डाले थे। 3 सेलिब्रिटीज ने हमारी स्टोरी कवर करी थी और जो रिस्पॉन्स आना था वहां पे वो हमने ऐसे अंडर एस्टिमेट किया कि हमारा ग्राफ ऐसे गया, मैं कहूँगा ऐसे गया, लेकिन ऐसे नीचे आया क्योंकि जो आ रहा था, जो हमारे पास आ रहा था, हम लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। Oh, there was so much coming, after that incident. Yes, yes. तो हमने इतना कुछ सीखा उस पूरे इंसिडेंट से। हमारे पास ओवरनाइट और शॉर्ट लास्टेड सेलिब्रिटी सक्सेस आया, हमारे पास अच्छा रिस्पॉन्स आया, हमारे पास अमिताभ बच्चन का टैग आया, नाम आया, लेकिन हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया ठीक से। तो वो आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स, एंड फ्रॉम द सेम फेलियर वी रीवैम्प्ड एवरीथिंग। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपना पूरा मॉडल स्ट्रक्चर करेंगे जीरो से, कैसे इसको बिल्ड करना है और कैसे इसको ऊपर लेके जाना है इन एवरी एस्पेक्ट, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग। साजन, I mean, when it came to your way, because जब बहुत सारी success आई इस incident से, मतलब how you were not able to manage too much of it, like too much is coming to you and you don't know how to handle the things at that point in time. So your question is that how were we not able to handle it? Yeah, I mean, you were saying ना कि उस time पे एक failure भी हमें feel हुआ when so much of coming to you, and then like you said, you were like, what was that fact that leads to failure after such a big success when Amitabh Bachchan himself promoted your foundation, Clothebox Foundation. उस टाइम पे हम लोगों के पास एक फेसबुक पेज होता था, क्योंकि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हमको वेबसाइट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस वाज वेरी अर्ली 2014-15। ये नहीं कहूँगा कि वेबसाइट नहीं थी उस टाइम पे, पर हमें लगता था फेसबुक पेज हमारा सफाइस कर जाएगा। हम लोगों के प्रोसेसेस बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं थे। हमें नहीं पता था कि अगर हमारे पास ओवरनाइट एक बड़ी क्वांटिटी आ रही है या ओवर अ मंथ हमारे पास एक बड़ी क्वांटिटी आ रही है, हम कॉर्पोरेट या फिर इंडिविजुअल डोनर्स की नीड्स को कैसे कैटर करेंगे। डिफरेंट सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, कोई बैंगलोर से गुड़गांव में कैसे कपड़े बेच सकता है। हमारा कुछ भी सॉर्टेड नहीं था, कोई लॉजिस्टिक सॉर्टेड नहीं थी, हमारे वेयर हाउसिंग सॉर्टेड नहीं थी, हमारा कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं था। हमने पर्सनल नंबर दिए हुए थे और वो पूरा दिन हमारे नंबर बचते रहते थे। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमने हाथ जोड़ दिए, हम फोन नहीं उठा सकते। तो इतना ज्यादा overflow of work and the clothes were coming to you. तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं किया। True, I got your point, yeah. राइट, या तो आप उस सेलिब्रिटी, शॉर्ट लिव्ड सेलिब्रिटी जो था टाइम था उसको आप एंजॉय करते रहते। हम बाहर जाते थे तो कुछ लोग हमें रिकॉग्नाइज भी करते थे। साजन की ये सब चीजें मोमेंट्स बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, फॉर अ शॉर्ट टाइम इट जस्ट कम्स टू यू एंड इट जस्ट गोज एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू विद योर ओन जर्नी। Yes, people won't just repetitively talk about it. It just comes and it gives you some boost in your career, and then you just go with the flow like this. Yeah, so that happened, and then we sort of realized that things need to change now. Oh, that's lovely. Yeah.
And last but not the least, would you like to tell us something about your brand, which is Refresh, which you have launched, and our audience wanted to know what exactly it is about, and what exactly you are doing in that sphere. So 40% of what Clothes Box receives as clothes is not fit for donation. तो हम लोग इनिशियली उस कपड़े को आप कह लो कि ऑलमोस्ट डंप ही कर रहे थे, and we realized that it's a very bad idea. So we put all of that clothes, all those clothes into upcycling and recycling, and all of that is done through a self-help group. And ladies come there, ladies who are underprivileged या उनके पास कोई स्किल नहीं है, उनको हम बुलाते हैं, स्टिचिंग मशीन पे बिठाते हैं और उनको बोलते हैं ये आपकी मशीन है और इस तरह का आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये आपके टीचर है। 6 महीने से 1 साल का एक प्रोग्राम होता है और वो सारा का सारा खराब कपड़ा रिसाइकल होके हम यूटिलिटी आइटम्स बनाते हैं या फिर हम ब्लैंकेट्स बनाते हैं। सो इनिशियली वी यूज्ड टू बाय अ लॉट ऑफ ब्लैंकेट्स फ्रॉम द मार्केट फॉर विंटर बिकॉज नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंसेस अ वेरी बैड विंटर। सो हम लोग वो पूरा का पूरा कपड़ा रिसाइकिल करते हैं इनटू ब्लैंकेट्स या फिर अपसाइकिल करते हैं, and then we keep making that throughout the year. The ladies are also paid while they are being trained so that the motivation is there. And so instead of buying, we are making in-house, and then we're also teaching them how to make different utility items, such as now we're doing a lot of masks, and these are very, very professional, sort of True. products So that we that's are also making. amazing, yeah. Keep And recycling the old clothes and making new goods out of it and then selling them into the right, market. right. And plus it brings in a lot of sustainability. Yeah. We are also touching one of these United Nations Sustainable Development Goals. So, so there are a lot of aspects. So Refresh goes a long line with Clothes Box Foundation. No, that's amazing, Sachin. Amazing work you guys are doing, and it's my pleasure to have you with me. It's just awesome in every possible way. And I think life is amazing, and this is all about I wanted to ask you, and definitely I want to see you in person and meet you and just go out on rides with you, when you just give and distribute clothes to the poor and just get a feel how it feels, when you just help others. And, the feeling is, I'm sure it must be amazing just giving them something, it just fulfills your life in many possible ways, I guess. Yeah. And thank you so much for coming. And that's all, it's lovely to have you. Thank you so much. Lovely Yeah. talking to you. Same here. And I hope to see you soon once this corona is over. Then, I would love to see